Thank you. Thank you. So thank you for agreeing to speak with us. And we'll start the session now. So I'll tell everyone a little bit about Nazariya. Nazariya is a queer feminist resource group. We work on issues of queer women and trans persons. और हम ट्रेनिंग करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स करते हैं, और हम रिसर्च करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, केस वर्क करते हैं, हेल्पलाइन चलाते हैं, फ्री मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ हम ओरल हिस्ट्री आर्काइविंग भी करते हैं. एंड उसके तहत 2016 से वी हैव बीन रिकॉर्डिंग issues, मतलब जो जब भी we talk about LGBTIQ issues in India, we normally get used to talking about only Section 377 or the legal battle. But whatever happened before that, how organizing happened, how people organize themselves, how people live their lives during that time, how intersectionality of different movements happened during that time, उसके बारे में बहुत कम बात होती है. तो हमने ये वेबिनार सीरीज रखा था जिसके तहत सैफो से लोग आए थे, लेबिया गेलबीटी कलेक्टिव से लोग आए थे, एंड सुनील आया था. रूमी की तबीयत खराब हो गई थी, सो वो नहीं आ पाया था, और फिर आप लोग हैं. So welcome to this series, and I'll give a brief introduction about Maya and Gindira. So Maya calls herself a feminist activist, a writer by accident and a queer activist by choice, working at grassroots in Delhi resettlement colonies within the women's movement. On issues of single woman, organizing and building a political identity. It was their intersectional vulnerability that brought the paper and pen together for her. And she writes in Hindi and English. She realized that the diversity amongst the single women concealed those women who loved women, her interests aroused. She began to notice this relationship even in her work in the National Trade Union. And this was in the last decade of the 80s and the 90s, when all that could be done was whisper about same-sex relationships. Perhaps those observations and conversations paved the way for people like her to openly campaign against the ban of the film Fire in the winter of 1998. From there, an uncharted journey began for Maya. From writing a book on single women in Hindi, to going on to writing a book of first of its kind called Loving Woman, being lesbian in underprivileged India, which was published in 2006. She moved to Gujarat at a time when the voices of those living in smaller towns, rural and tribal areas amongst the queer community, it was barely audible. So Maya decided to join Vikalp in Vadodara to work on the ground best suited to her skills and her own people, with people like her and not quite like her. About Indira, Indira is a bit of a vagabond in her younger years. Indira Pathak's activism bears that stamp still, running among like her intervention. She is rarely still. Her reflections and ideology sharpened through her diverse work in the field. She continues to anchor herself there. Less of a talker, her best foot forward is best seen only on the field. Her initiation into gender issues was through the left, building a successful cooperative amongst the women's movement to join the government and unionizing the voluntary workers in the Mahila Sameka program. She calls herself a dissenter. So Vikalp was formed by Indira as one of the dissenters there, and very soon she took on the issue of workers in the rural tribal areas who were dying of silicosis. And all this while her discomfort with the identity of woman lay
under wraps even when she became part of the women's movement. Slowly and selectively, her coming out was open only to a few in the women's movement, and then it became the identity of women who loved women that prevailed. It seems only recently in 2003, with the start of Vikalp's journey in reaching out to the queer community in Gujarat, like herself, that I came home to myself, that she says. Not a woman, neither a man, closer to the trans with masculinity that affirms femininity. That's a beautiful way to put it, Indira. Enthused with a sense of self, she got involved with the community at several levels, from dealing with police, families, eloping couples being attacked, to fighting discrimination and pursuing government hospitals to conduct free surgery for trans men in 2006. This is a journey that is best described by herself. So welcome both of you. So the agenda is such that I'll ask you some questions based on the discussions that we had in Nazaria, and then the floor will be open for the audience to respond and comment and all. So the first question goes to you, Maya. You have worked with the trade union and women's organizations. So please do tell us about your journey there. How did you start working in those organizations, and why Vikalp? Why Vadodara after Delhi? अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, अगर भूल जाती हूँ तो ऐड कर देना, ठीक है? ठीक है। पर हिंदी में बोलूँगी ज़्यादातर। ठीक है। तो यूनियन में मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे हम अपने घर में जब जरा बड़े हो जाते हैं, अपने विचार बदलने लगते हैं, या कह लो अपने आप को जब पा लेते हैं एक तरह से, तो मैंने भी फिर मतलब महिला समूह में इस तरह से जब मेरा ग्रोथ हुआ और मुझे मौका मिला बढ़ने का और फेमिनिज्म को समझने का, तो मेरा मन हुआ कि मैं और बाहर निकलूं और फैलूं। तो MSW तो करा हुआ नहीं था, तो इस वजह से जब मुझे किसी ने कहा यूनियन में कि तुम आके जेंडर इश्यूज पे काम करो, तो मैं यूनियन में जुड़ गई। और सबसे मजे की बात है कि मुझे ये दो खंबे, हमारी महिलाओं के लिए खासतौर से ये दो खंबे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो हमारा ये लेबर और सेक्सुअलिटी, इन दो चीजों पे पितृसत्ता समाज का बहुत कंट्रोल है, और इन दो संस्थाओं में रह के मैं आइडियोलॉजिकली और अपने निजी जीवन में भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकी। तो यूनियन में, और क्योंकि मैंने जैसे आपने बताया कि सिंगल वुमेन के दरमियान जब मैं काम कर रही थी, तो उसमें मुझे ऐसी औरतें बहुत मिलती थी जो एक दूसरे को प्यार करती हैं, और यूनियन में भी ऐसे लोग थे। और बहुत अगर गहराई से देखो तो यूनियन में एक्चुअली बहुत सारे ट्रांस लोग जो एक्टिव है बहुत आउट स्पोर्ट्स में, और ये तो उनको भी वहाँ पे रेलवे में नौकरियां मिली थी, और जिस यूनियन में मैं थी वो रेलवे में बहुत एक्टिव था। तो जिंदगी के ऐसे कोइंसिडेंसेस हुए कि आई वॉज कॉन्स्टेंटली कमिंग इन टच विथ क्वेयर पीपल। आज हमारे पास ये शब्द क्वेयर है, पर जब मैंने जुड़ना शुरू करा था तब मेरे पास क्वेयर शब्द नहीं था, ना ही ट्रांस था और ना लेस्बियन था। लेस्बियन आया मगर थोड़ी देर में आया, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे टाउन से भी थी जब मैं दिल्ली आई, तो मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था। पर खैर इस दरमियान मैंने देखा बहुत यूनियन में बड़े इंटरेस्टिंग यूनियंस को बुलाया जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, तो वहां भी मैंने देखा कि जेंडर की समझ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। नाइट वर्क में अगर औरतें को देंगे तो औरतें फ्रस्ट्रेटेड होंगी, इस तरह की बातें होती थी। तो पर यूनियन से मैंने लेबर का बहुत गहराई से समझ करा, और उसके बाद सेक्सुअलिटी, तो क्योंकि अपनी निजी जिंदगी भी इस मुद्दे से जुड़ रही थी, तो मैंने इस तरह से अपना काम शुरू करा कि अपने घर से बाहर निकली, और फिर एक तरह से मैं कहूँगी कि जब मैं बड़ौदा आई तो मैं एक तरह से घर वापसी हुई, बैक टू वुमेन्स ग्रुप। अब नेक्स्ट क्या सवाल था तुम्हारा? वडोदरा क्यों चूज किया आपने? क्योंकि तब महिला आंदोलन में हम बहुत जगह काम करते थे,
तो जैसे बिहार, गुजरात और भी जगह जैसे उत्तराखंड, तो इस दरमियान क्योंकि सिंगल वुमेन पे काम कर रहे थे, तो मेरी मुलाकात इंदिरा से हुई और गुजरात के काफी लोगों से हुई। तब इंदिरा महिला समाख्या में थी और हम लोग सिंगल वुमेन पे काम कर रहे थे। तब एक्चुअली जब ये आंदोलन या क्वेयर मूवमेंट से पहले हम कहते हैं ना, जैसे धीमी धीमी सी आंच चलती है और फिर वो बहुत अच्छे से पकता है, सब्जी या दाल या कुछ। तो इसी तरह से जब हम आपस में तो जरूर बात करते थे हमारी चाहतों की, हमारी पहचान की, मगर बहुत खुल के नहीं बात होती थी। तो मुझे लगता है कि जब ये हम सिंगल वुमेन का काम कर रहे थे, तो बहुत हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला और मुझे फिर इंदिरा और इंदिरा के और कई लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। तो फिर क्योंकि मैं इनको पहले जानती थी और क्योंकि मैं वो किताब लिख रही थी और क्योंकि तो इन क्योंकि की लंबी कतार में इंदिरा का बहुत सहयोग रहा जब मैंने किताब लिखनी शुरू करी कि हाँ तुम आके मिलो, क्योंकि वो जानती थी लोगों को और खुद भी इस तरह की थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, और इस तरह से मुझे लगा बड़ौदा आना ठीक रहेगा। पर तब इतना, आज जो मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ, इतना भी प्लान तरीका नहीं था, क्योंकि तब मैं खाली एक रिसर्च के नजरिए से बड़ौदा आती जाती रहती थी। फिर बाद में जब इनका काम देखा और सचमुच बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ हो रहा था और HIV एड्स का भी काम कर रहा था विकल्प, तो इस संदर्भ में बहुत कुछ मुझे लगा कि अच्छा है काम करना। दूसरा, मुझे लगता है कि मैं ज्यादातर जिसे हम लोग फुट सोल्जर्स कहते थे, मैं वह हूँ और इस पहचान से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन मौका है। दूसरा, मैं सच कहूँ तो यूनियन को भी तब तक मालूम चल गया था कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। 2002, मतलब हो सकता है कि मेरे को ईयर बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है, पर पंचगनी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बहुत तरह के लोग आए थे, हमारे यूनियन से भी लोग आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि मैं इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ, क्योंकि तब मैंने एक अपना फील्ड एक्सपीरियंस शेयर करा था उस कॉन्फ्रेंस में, तो जब मैं वापस लौटी तो यूनियन बहुत नाखुश था कि मैंने इस तरह की बात क्यों उठाई और उनकी एक तरह से इमेज मैंने खराब कर दी। तो फिर मुझे एनीवे धीरे धीरे करके यूनियन से जाना पड़ा। अच्छा, ओके। तुम गायब? नहीं, मैं हूँ। तुम हो ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फिर तुम नजर नहीं आ रही हो। अभी अब आई। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हम, हाँ, शार्ल्स ने लिखा है 2000 दिसंबर पंचगनी कॉन्फ्रेंस। तो पंचगनी कॉन्फ्रेंस में मैंने अपना फील्ड लेवल एक्सपीरियंस शेयर करा था, मतलब क्योंकि तब मैं इस कैंपेन में या कलेरी से के बाद हम लोग बहुत एक्टिव हो गए थे। तब मैं बहुत मतलब अपना रिसर्च और कर रही थी, मिल रही थी लोगों से। तो राजस्थान में मुलाकात हुई थी जिसको कहते थे बाबू महाराज। तो जब मैं उससे मिली तो वो मैं कॉन्फ्रेंस में शेयर कर रही थी। आई वाज वेरी एक्साइटेड, और तब शायद वोकैबुलरी आज जो वोकैबुलरी है तब नहीं थी हमारे पास। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रहता था विमेन इस्तेमाल करना इत्यादि। हावेवर मेरे कॉन्फ्रेंस पहुंचने से पहले खबर पहुंच गई थी यूनियन में कि मैं किस तरह का मुद्दा उठा रही हूँ, और ये उनको बिल्कुल गलत लगा कि मैं यूनियन में होके इस तरह की बात करती हूँ। तो मैंने बहुत कहा भी कि देखिए, मैं यहाँ यूनियन की ओर से नहीं गई थी, मैं अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में गई थी, पर उनको कुछ ठीक नहीं लगा और फिर मुझे धीरे धीरे निकलना ही पड़ा। Within 6 months I had to leave the union. ये भी एक कारण रहा है कि बड़ौदा शिफ्ट होने का। माली हालत और रूहानी हालत कुछ ऐसी ही थी।
तो मैं आपका किताब के बारे में आऊंगी दोबारा पूछने के लिए, पर अभी इंदिरा से ये सवाल है, आपने आपको डिसेंटर कहा है लेफ्ट में और वुमेन्स मूवमेंट में, और डिसेंट की वजह से विकल्प शुरू हुआ है। अपने आप को डिसेंटर क्यों कहा है और विकल्प कैसे शुरू हुआ है? हाँ, मैं डिसेंटर हूँ। पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं ज्यादातर अपना जो अंदरूनी क्या कहते हैं दिक्कत थी मेरी, और काम के साथ मैं उसको हमेशा जोड़ना चाहता था, उसकी बात करूँ तो यंग एज में कॉलेज स्टूडेंट के डेज से ही मैं लेफ्ट फ्रंट पे काफी एक्टिव रही हूँ, और उनके साथ काफी अच्छी समझ हमारी क्लास की, ऑप्रेस की, समाज के में जो एक नजरिया होता है लेफ्ट का देखने का, और वो बहुत ही सुंदर समझ डेवलप हुआ मेरा उनके साथ। लेकिन जो उसके अंदर जो मेल डोमिनेटेड स्पेस थी, उससे मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, और मुझे बार बार लगता था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना बात रख सकूं। और कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उसके जो हेड थे उनसे जाकर सीधी तौर पे बात की, और मैंने अपनी सेक्सुअलिटी की बातें उनसे शेयर करने की शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे बात की, अच्छी बात है, पर इसको और किसी को मत बता। तो मुझे एक बड़ा धक्का सा लगा कि जिसपे मैं इतना विश्वास मैंने किया, और वो मेरे प्रॉब्लम को समझने से इनकार कर रहे हैं। तो मुझे तकलीफ हो रही थी उन बातों से, और जो मेरे अंदर था वो कहीं भी व्यक्त नहीं हो रहा था, और उसको मैं लगातार ढूंढ रहा था। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन की अहमदाबाद में, जो कास्ट पे काम करती थी, और काफी हमें वीक में 10-15 दिन वहाँ रहना पड़ता था गांव में, टू अंडरस्टैंड द कल्चर का और उनके जो रीति रिवाज है जानने के लिए। तो काम करने के दौरान जब मैं दूसरे वीक वहाँ पहुंची तो मुझे ऐसा मालूम चला कि किसी औरत का मर्डर कर दिया गया है, और उसके गले पर सूजन थी, और उसको दफना दिया गया है। और जब मैंने काफी जब बातचीत की लोगों से, तो पता चला कि दहेज की वजह से उसको मार दिया गया है। और मैं तुरंत अपने हेड के पास गई, मैंने कहा कि इस मुद्दे को लेना बहुत जरूरी है, और जल्दी से हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वारदात हुई है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया, यू आर एन आउटसाइडर, एंड एज एन आउटसाइडर यू कैन नॉट टेक अप दिस इशू, बिकॉज उनके हार्मनी को, उनके सिस्टम को, उनके छेड़छाड़ करना ठीक तुम्हारे लिए नहीं है, एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो फिर मेरी अपनी लड़ाई शुरू हो गई वहां से, और मैंने कहा कि अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो फिर भी मैं इस केस को तो लेना ही है मुझे। फिर मैंने FIR फाइल की, और न्यूज़पेपर में उसकी काफी जाहिरात हुई, कुछ अरेस्ट भी हुए, केस चला काफी, हालांकि एविडेंस ना होने की वजह से भी लॉस्ट केस, पर मुझे फिर भी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ा। और छोड़ना और पकड़ना, फिर महिला आंदोलन के लोगों से भी मैं मिली, और उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता था। दिल्ली में जाकर जब बातचीत शुरू की, तो उस वक्त मैं ऐसा कहूँगा कि इन मुद्दों की कोई जगह नहीं थी, बात नहीं होती थी। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस, रेप की बहुत खुल के चर्चा होती थी, लेकिन ये मुद्दे भी वहाँ काफी मुखरित नहीं थे, काफी खुलकर बातें नहीं हो रही थी। मुझे याद है, मैं कैलिकट के कॉन्फ्रेंस में जब मैंने एक औरत को ओपनली कहते सुना कि यस आई एम अ लेस्बियन, तो उसके साथ भी मेरा एसोसिएशन नहीं हो रहा था, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उससे अलग हूँ और मैं उसके जैसा नहीं हूँ। और इस कॉन्ट्राडिक्शन के साथ मेरे काम के साथ जुड़ा होता, काम करती रही, और मैं इस कॉन्ट्राडिक्शन के साथ जीती रही, और काफी झेलने जैसा महसूस होता था। लगता था कि कहीं सच्चाई नहीं है जो जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ। फाइनली महिला समाख्या में मुझे काम करने का मौका मिला, और ये थोड़ा मेरे लिए बहुत हीलिंग था, क्योंकि एक साथ इतनी सारी औरतों के साथ मिलना, उनके साथ एक बॉन्डिंग, उनके साथ बातचीत, और मुझे लगा कि ये जगह काफी अच्छा है काम करने के लिए, और मुझे अपने अंदर से अच्छा लग रहा था। और खासकर जब हम लोगों ने विमेंस कोर्ट की जब शुरुआत की,
जिसमें कास्ट पंचायत को हम लोगों ने विमेन स्पेस में परिवर्तित किया और कास्ट पंचायत को विमेन स्पेस के लिए यूज किया, एक तरह से हम कह सकते हैं, और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने चलाया। लेकिन जब यूनियन की बनाने की जरूरत हुई, क्योंकि वहां भी कॉन्ट्रैक्ट लाने की बात हो रही थी, और फिर हम लोगों ने यूनियन रजिस्टर किया और इस केस को जब हम लोग गुजरात हाई कोर्ट में ले जाना चाहते थे तो बहुत से महिला ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कह के कहा कि ये विमेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक चीज नहीं है, जिससे मैं डिसएग्री करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक चीज नहीं है। जहाँ भी इस तरह के संबंध हो वहाँ यूनियन और अधिकारों की बात होनी ही चाहिए, मेरी समझ है शायद। तो ये लगातार मेरा एक क्या कहेंगे संघर्ष संस्थाओं के साथ, समाज के साथ रहा है। और समाख्या छोड़ने के बाद जितने भी यूनियन बनाने में लोग मेरे साथ थे, क्योंकि मेन कंप्लेनेंट हम लोग में ही था, तो जब हम सब ने मिलकर विकल्प की स्थापना की, जिसमें हम 5 लोग शुरुआती दौर पे थे, और विकल्प की स्थापना हुई। तो वहाँ अगर मैं कहूँ कि शुरुआत में तो हम लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके सिलिकोसिस के केसेस को किया था, लेकिन जब जैसा माया ने बताया कि जब उस किताब को लिखने की बात हुई कि इस तरह की किताब क्या विकल्प सपोर्ट कर सकती है लिखने के लिए, तो वहाँ भी कुछ लोगों का था कि तुम विकल्प के फेस हो और तुम कैसे इस मुद्दे पर खुल के सामने आओगे। तो मुझे शर्त ये थी कि मैं विकल्प का फेस ना बनूं और माया उसमें एक्टिव होकर अपना काम कर सकती है, इस तरह की इजाजत कुछ मिली थी, जो बाद में काफी संघर्ष के बाद हम लोगों ने ट्रांस ग्रुप बनाने की कोशिश की और शुरुआत संस्था की कुछ इस तरह से हुई थी विकल्प की। थैंक यू इंदिरा। माया, वो किताब के बारे में काफी बात हो रही है, किताब के बारे में कैसे शुरू हुआ बात सोचना? इंस्पिरेशन तो वो वुमन थे जहाँ पे आप काम कर रहे थे, बट वो आई कैसे दिमाग में उस जमाने में, और आपने कैसे शुरू किया, और उसका वडोदरा के साथ क्या कनेक्शन रहा है? ये तो जैसे मैंने बताया ना कि बहुत टाइम से महिला आंदोलन में हम लोग आपस में तो बात करते ही थे, और इसमें शहर से बंधित नहीं थे हम, क्योंकि महिला आंदोलन में हम सब मिलते रहते थे, अलग अलग शहरों से बातचीत होती रहती थी। और हमारे से पहले दिल्ली में एक ग्रुप हुआ करता था जिसको खाली दिल्ली ग्रुप कहा करते थे। वो भी ये लोग आपस में मिलते थे, तब हम लोग खाली सुनते थे कि ऐसे मुलाकातें हो रही थी, पर हमें नहीं मालूम था। और मतलब इतना मालूम था कि एक ग्रुप है और ये लोग मिलते रहते हैं। और फिर बाद में की बात है, ये मेरे ख्याल 80s की बात होगी या अर्ली 90s दिल्ली में। और ग्रुप का भी एक कारण था खाली दिल्ली ग्रुप कह लेने का, क्योंकि उसमें भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। मेरे को बहुत अच्छी तरह से तो नहीं मालूम है, क्योंकि तब बहुत उड़ती बातें, ये सब बातें बहुत छुपे ढंग से होती थी, इवन विद इन द वुमेन्स मूवमेंट। तो आई एम श्योर कहीं तो कुछ लिखा ही होगा। और फिर बाद में कॉफी हाउस में भी लोग मिलते रहे थे, गुलाब रख के मिलते रहते थे, पर रोज और याद है? हाँ, सुना है? मैंने सुना है, हाँ, और बात भी किया था जिसने वो किया था हमारे उम्र के लोगों ने। तो पर और मुझे याद है जब एबीवी का पहला डेमोन्स्ट्रेशन जब हुआ था, जब क्योंकि किरण बेदी ने कॉन्डोम यूज करने से मना कर दिया था, तब मैं भी मार्च कर रही थी उसमें महिला समूह की तरफ से, और मैं थोड़ा थोड़ा अपने बारे में जान के भी अनजान हो रही थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मुझे इस ग्रुप के साथ शामिल ना कर ले। तो मतलब
मुझे अब समझ में आता है कि होमोफोबिया अपने अंदर भी होता है और बाहर भी। तो जब कभी मुझे लगता है कि बाहर जब होता है तो हमें थोड़ा समझना चाहिए। ये मैंने सीखा है इस उम्र में आके कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कोई सीखने के अंदाज में ही जीते हैं जिंदगी। हम सब सीखते रहते हैं। खैर फिर एबी के बाद महिला आंदोलन में मुझे याद है पहले हम लोग बहुत इनिशिएटिव्स हुआ करते थे, तो हमने सोचा रीजनल विमेंस कॉन्फ्रेंसेस भी हुआ करेंगे, ऑटोनोमस विमेंस कॉन्फ्रेंस। तो कानपुर में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें हम लोगों को यौनिकता का सेशन चलाना था। तो उसकी थी ये, और टाइम में ये भी था कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि लेस्बियन का मुद्दा ना आए, और कुछ लोग जो बहुत ओपन है वो लोग उस वर्कशॉप में ना दिखे। फिर कैलिकट का तो बहुत सबको मालूम है, डॉक्यूमेंटेड भी है हमारी जो आपका वॉइस कट रहा है। They are joining again. Yeah, I think they have joined. Yeah. आया? आया। ओके। भी किया तुमने ऑन? आ रहा है? Can you hear? We can hear you, can't see you. चलो तो ऐसे ही चलो। Wait. You can see? We can see you. हुआ? साउंड साउंड आ रहा है। आ रहा है? साउंड आ रहा है? हाँ साउंड आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। हम तो दिख रहे हैं। हाँ अब आ गए। आ गए, आप शेयर कर सकते हैं। फटाफट कर लेते हैं। प्रॉब्लम है जरा कनेक्शन। क्या है ना तुम? So where were we? You were at women's conference में where you were not allowed, people were not allowed. Basically there was a lot of since there was so much stigma attached. Yeah.
कनेक्शन क्यों कट हो रहा है? हाँ Maya and Indira can see you. Can you see? Can you hear? Yes, we can hear you. So should we continue like this? Yeah. क्या कर रहे हैं? रुको मैं कोशिश कर तुम यू कंटिन्यू विद But तू कनेक्शन से उनका दिख रहे हो but ठीक है. ओके तो anyway, so there were बहुत सारी चीजें हो रही थी, and I think what was the question? Question was वो किताब की आइडिया कहाँ से आई और वो कैसे शुरू हुआ? तो आप जब वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं वो कौन सा ईयर था? Must have been it was एक regional conference थी कानपुर में. This was before the Calicut conference. Yeah, or Tirupati conference. I forget. Calicut, I think. Okay. क्या हो रहा है? कनेक्शन का प्रॉब्लम है? I think video का प्रॉब्लम है, but you can talk. Okay. So all बहुत and within the movement across the cities we were having all these various conversations with each other. I remember the first ever retreat that we had was in Bombay. It was organized. Hello. What is it? Can you hear? Yeah. हाँ. Yeah. Jay ने बोला है it was before Tirupati conference which was in 1992. The Kanpur regional. Then anyway, so there were all these various conversations, events happening, but all not, I mean, limited in not really public, limited within the women's movement. And I think all these strands finally led up to us protesting against the ban on the film Fire. First, Shalu Chauhan, everyone. Hello, Maya. हाँ. आप बोलो, सुनाई दे रहा है. अच्छा. तो I don't know what's wrong today. बहुत. So sorry for participants for all the history that we are going through. Technology का तो हमेशा रहेगा. तो मुझे लगता है बहुत सारे छोटे currents really ended up making us, come forward, because we were already quite a handful who knew each other and who sort of used to meet, beginning from Delhi group to, meeting within the women's movement, within cities, little asides within the bigger workshops. All of these things used to happen. Also, हमारे जो relationships में दिक्कतें आती थी, we would talk to each other about it, how to overcome these. So there were, finally, I think when the ban was put on fire, it really brought us brought us together. And I would say, I think it was mostly the youngsters who
took up the initiative. I was an older woman, but I took the movement as just गया हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है. बोलते जाओ तुम, बोलो. इससे करो क्या? इससे करो ना. We can ये see ठीक you, है? Chitra. ये बंद. हाँ, पढ़ना. Are we visible? Yes, you are visible. No, I mean, can you hear me? Is my voice visible? Your voice, yes. Okay. So, फिर फिल्म फायर का प्रोटेस्ट हुआ, हम सब, and then after the film fire we formed a group called Kaleri, which is कलेरी के campaign बारे for. में थोड़ा बताइए. हाँ कलेरी के बारे में थोड़ा बताइए. हाँ, तो जब ये प्रोटेस्ट हुआ फिल्म का, तो हमें लग रहा था कि हम लोग why don't we come together, various groups who were at that time allies and who identified as queer people, we came together and we formed this group called Campaign for Lesbian Rights, and we decided that we would try to create an awareness and create space for ourselves and for the issue. In fact, during the protest, actually interesting thing was some of the groups were so supportive. They said कि अगर ये मुद्दा नहीं उठाओगे तो हम लोग इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये था कि आप लोग इसको इस तरह से मत उठाइए कि it is sort of actually banning and talking against women's sexual rights, and so they said let's just raise it as an issue of violation of freedom of expression. And some of us felt that that is not enough, it is too broad a rubric to sort of really overlook, as it is the rest of the society was overlooking. And this was an opportunity to sort of really talk about issues. And a lot of other groups in fact said कि अगर तुम लोग इसको violation of freedom of expression से कहोगे तो हमें ऐतराज होगा. इससे हमें बहुत सपोर्ट मिला और हमने बहुत प्यार से एक पोस्टर बनाया था इंडियन एंड लेस्बियन. उसकी भी एक लंबी हिस्ट्री है और वो अभी तक चलती रहती है कि आप वेस्टर्न हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो एक ही पोस्टर था और उसको हम लोगों ने बहुत प्यार से हमारे हाथों में जैसे किसी बहुत प्रेशियस चीज को एक दूसरे को देते रहे. और बहुत लोगों ने उसको नहीं भी पकड़ा, पर हम लोगों ने उसको बहुत प्यार से बनाया और उसको लिया. और अगले दिन तो बस वही एक पोस्टर सब जगह इस तरह से छप गया कि हमें भी लग रहा था कि हमने क्या ठीक करा है कि नहीं, बिकॉज this was like it was also presented as a scandal, as a novelty and various other things, because gay conferences hoti thi, people talked of HIV AIDS, but women were still very invisible. So in some senses I would say, I would avoid the word first, but in some senses it was the first visible expression of women's choice of their sexual expression. And from there we started to come together as a collective. कॉफी हाउस में, कनॉट प्लेस में, मोहन सिंह पैलेस में हम लोग मिलते थे. बहुत अच्छी जगह है, full of urine smelling. I don't know if it still does that. Yes. It does that. All men pissing there. Yes. But so that was it. फिर हम लोग और इंटरेस्टिंगली कलेरी में वो लोग भी थे जो ABVA से जुड़े हुए थे. तो वो मुझे लगता है वो लोग बहुत शार्प और कमिटेड एक्टिविस्ट थे और उनसे हमने बहुत सीखा. आज हम मिल नहीं पाते हैं, उनको याद जरूर करते हैं, सिद्धार्थ और भी जो लोग ABV से जुड़े थे और फिर कलेरी में भी जुड़े. और हम लोग मिलते थे और बात करते थे कि किस तरह से आगे इसको ले जाया जाए. तो बहुत
तब ये भी 2002 में वायलेंस अगेंस्ट विमेन का मार्च था। यार ये बहुत लंबी कहानी तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं बताओ। इट्स वेरी बोरिंग, नहीं? नहीं नहीं। एनीवे 2002 में नहीं, हम लोगों ने ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन एक ग्लोबल मार्च था। तब हम लोगों ने कहा within the women's, the larger women's movement, not the autonomous feminist movement, कि let's raise this issue of, because women were committing suicide and it was mostly working class. तो ये सब मुद्दा, और ironically लोग फिर भी कहते थे कि ये तो वेस्टर्न है, ये तो प्रिविलेज लोगों का बात है, गरीब लोग तो अपना रोजी रोटी कमाने में जुड़े रहते हैं, ये कहाँ उनको मैटर करेगा। और इस तरह से, मतलब जिस तरह से हम बॉक्सेस बना देते हैं हमारे जीवन के कि ये लाइवलीहुड का मैटर है, ये सेक्सुअलिटी का, बट ये इंटरसेक्शंस, महिला आंदोलन में मुझे लगता है हमेशा इंटरसेक्शंस के जरिए बात करी थी, और इसीलिए मुझे लगता है हम लोग एक तरह से मजबूती से इंटरसेक्शन को लेके आगे आए थे, और हम लोगों ने कहा था कि नहीं, सेक्सुअलिटी का मुद्दा भी बहुत जरूरी है इसे। पर एनीवे कंसेंसस नहीं हुआ, हमने फिर भी मार्च करा साथ, और उसके बाद हम लोगों ने तय करा कि हम लोग आपस में बातचीत करके एक समझ बनाएंगे। इस दरमियान जब हम खोजने लगे डेटा, तो हमारे पास अखबारों में छपी चेहरे थे, अखबारों में मतलब नाम नहीं थे, खाली एक मतलब चेहरा नहीं हो कि खाली नाम भी वो लोग बदल देते थे, आंकड़े की तरह हम लोग पेश आते थे, पर कौन है ये लोग, इनकी कैसी जिंदगी दिन पे दिन गुजरती है, ये हमें नहीं मालूम चलता था। तब मुझे बहुत कमी लगी, और क्योंकि मैं सिंगल वेमेन की कहानियां वैसे ही लिख रही थी, और मुझे मालूम है कि सिंगल वेमेन के अंतर्गत इतनी और औरतें हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इन औरतों की कहानियां लिखें, और कहानियां सुनने और लिखने का मुझे बहुत शौक रहा है। तो मुझे लगा कि लिखना चाहिए इन बातों को, और भी जो मेरे साथी लोग थे, इवन विद इन द यूनियन और वुमेन्स मूवमेंट ने बहुत कहा कि हाँ हमको लिखना चाहिए। तब मैं फिर बहुत मेरे साथीदार बहुत लोग हैं जिन्होंने सचमुच बहुत सहायता दी मेरी सोच और समझ समझाने में। हालांकि किताब में मैं एक तरह से कहूँगी, हमारा जो एक समझ थी क्वेयर की डाइवर्सिटी को लेके, हम तब लेस्बियन शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो वो एक मुकाम था जब लिखने के दरमियान, बातचीत के दरमियान, जब हम लोगों की तब थोड़ी थोड़ी समझ बनने लगी थी ट्रांस लोगों की, तब हम लोगों ने, तब इस वजह से मैंने ये किताब लिखी कि हम लोगों को कह पाए कि हम हर शहर, हर गांव, हर कल्चर में मौजूद है। पर्पस तो यही था कि मैं इन कहानियों को लिखूं और सब तक पहुंचाऊं। तो और पहले जब मैंने सोचा था, ये नहीं सोचा था कि ये किताब की तरह मैं लिखूंगी, बस कहानियां पेश कर पाऊं, ऐसी मेरी मर्जी थी। और फिर धीरे धीरे समहाउ अगेन फ्रेंड्स लोगों ने की मदद से और सब पहचान से या जो भी है, वो फिर उसने एक किताब का रूप लिया। तो मुझे लगता है कि मुझे महिला आंदोलन और लोगों से बहुत सपोर्ट मिला है। जो भी गतिविधियां हुई, जो इवेंट्स हुई, वो सब किताब में बेशक वो नाम से मौजूद नहीं है, पर आज ये अगर किताब जब लिखी तब वो इसीलिए बन पाई क्योंकि मुझे बहुत सहयोग मिला, उत्साह भी मिला। ये मुझे एक्नॉलेज करना है हिस्ट्री के साथ साथ, तभी ये हो पाया। तो थैंक यू माया। इंदिरा, आपसे ये सवाल है कि ट्रांस मैस्कुलिन लोगों के साथ काम करना और अपने आइडेंटिटी को डिस्कवर करना, ये प्रोसेस कैसा रहा? जब हम लोगों ने विकल्प में इस मुद्दे को लेना शुरू किया, तो समझ ही नहीं थी कि हम लोग इसको उठाए कैसे और कितने लोग हैं और लोग जुड़ेंगे भी या नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जब पोस्ट बॉक्स की शुरुआत की हम लोगों ने, और एक छोटा सा स्टिकर बनाया हम लोगों ने, और उसे हर जाहिर जगह में जाकर चिपकाना शुरू किया,
उस वक्त हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन थी बड़ौदा की, लक्ष्य, और हम दोनों उस वक्त काफी साथ साथ काम भी किया कर, हमारे उनके साथ नेटवर्किंग भी काफी अच्छी रहती थी। तो हर जाहिर जगह में हमने जब इस स्टिकर को चिपकाया, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर में इस मुद्दे को लेके गए कि छोटा सा ऐड अगर आप डाल दें कि जो औरतें औरतों से प्यार करती हैं और इस बारे में अगर बात करना चाहती हैं तो इस फोन नंबर पर उनसे हमारी बातचीत हो सकती है, हेल्पलाइन की जैसे हम लोगों ने शुरुआत करने की कोशिश की थी। लेकिन न्यूज़पेपर ने साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसी चीजों को नहीं छापेंगे। दिस वाज लाइक 2001 2 की बात है। तो जब उन्होंने स्टिकर्स लगाए और राजकोट जाकर, हर शहर में हम लोग जाकर कुछ दिनों तक यही काम किया कि जाकर स्टिकर्स को चिपकाना शुरू किया। और हमारे पास एक पत्रकार आई थी कि ये अभियान चलता है गुजरात में, चित्र अभियान बहुत में, उन दोनों के पत्रकारों ने हमें अप्रोच किया कि क्या इस मुद्दे पर आप में से कोई बात करेगा। तो माया ने उसमें काफी विस्तृत इंटरव्यू दिया था उस मैगजीन में, और वो उस मैगजीन को गुजरात में काफी पढ़ा जाता है, काफी उसके रीडर्स हैं। तो उसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा और काफी लोगों ने हमें लिखना, फोन करना, अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर बात करना, लेटर लिखना शुरू किया। और हम लोगों ने हर लेटर, हर इसको, या कोई भी अगर न्यूज़पेपर में रिस्पांस न्यूज़पेपर कोई न्यूज आता था तो हम उसको फॉलो करते थे, उसकी फैक्ट फाइंडिंग करते थे। तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने काफी तकरीबन 6-8 महीने तक हम लोगों ने जारी रखा, और इससे हुआ यूं कि लोगों ने, ज्यादातर ट्रांस लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया और जुड़ना शुरू हुए, और इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई। और वहां जब बाहर आने की बात हुई तो उस ग्रुप में मुझे अपने आप को जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत लगता था कि मेरे जैसा बात है, मेरी अपनी बात है, तो मुझे वो छिपाना या दूर रहना जैसी कोई बात नहीं थी। और मुझे ये ग्रुप बढ़ता गया, और रूरल एरियाज में जो हमें विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एज अ पार्टनर रह रहे होंगे, अपनी एक पारिवारिक जिंदगी जी रहे होंगे, इसको जब हम लोगों ने खोजा और जाना तो ये संख्या काफी अच्छी खासी बड़ी है। और अगर हम संख्या की बात करें तो हम 2002 में कहीं नहीं थे, 2, 4, 5 लोगों की हमारी जान पहचान थी, और वे लोग भी सामने आने में बहुत डरते थे। लेकिन अब हमारी जो संख्या है वो तकरीबन पूरे गुजरात में अगर हम देखें तो 300 हैं, और उनके पार्टनर्स इसमें शामिल नहीं है। ये सिर्फ ट्रांस लोगों की, ट्रांस मैन की संख्या है। और जब हम लोगों ने इस मुद्दे को फिर हमने और आगे बढ़ाया और सरकार के साथ हमने एडवोकेसी शुरू की, जैसे ट्रांसजेंडर, रिसेंटली हमने ट्रांसजेंडर बोर्ड को लेकर, या ट्रांसजेंडर बोर्ड में फीमेल टू मेल F2M का इंक्लूजन हो, उसकी चर्चा जब हम लोग जाहिर में शुरू की तो काफी ट्रांस से आके बोले कि ये मुद्दे के लिए है तो हमें बाहर आने में तकलीफ नहीं है। और उन्होंने सरकारी दफ्तरों में आकर प्रेजेंटेशन किया, बातचीत की, अपनी बातचीत की, और जिसके चलते हम गुजरात में F2M को इंक्लूड कर पाए ट्रांसजेंडर बोर्ड में। हालांकि ट्रांसजेंडर बोर्ड के फॉर्मेशन में अभी भी वही सारी दिक्कतें हैं जो सरकारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में क्वेयर इश्यूज के बारे में जानना, लोगों का बुलाना, उसके बारे में मुद्दे की समझ बनाने के लिए, ये सब काफी उत्साहवर्धक था। और मैं अपने घर में आउट नहीं हूँ, पर मैं अपने ग्रुप में, अपने जाने पहचाने लोगों में, अपने काफी सारे लोगों के बीच में एज अ ट्रांस जाने जाती हूँ, और मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे अच्छा भी लगता है, ये मेरी आइडेंटिटी है। हेलो। या तो अभी जो मेरा सवाल एक और है, बट मैं क्या करती हूँ अभी कि हम अभी ऑडियंस को पूछ लेते हैं कि कोई सवाल, कमेंट्स, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं। और लास्ट टाइम चैनिका और शार्ल्स आए थे, वो रिट्रीट के बारे में जो आपने मेंशन किया था ना, बॉम्बे में हुआ था, उसके बारे में भी वो मेंशन कर रहे थे। एंड चैनिका is writing here that about the Tirupati conference in 1992 and all. So maybe if people want to ask questions to Maya and Indira, please ask. Otherwise,
we'll ask them questions. यहाँ पे है, ma'am, how were you able to find queer women? Was the working class background of women a problem in having conversation? Can you repeat? नहीं, वर्किंग क्लास मतलब क्योंकि हम लोगों ने अगर गुजरात की मैं बात करूं या किताब की बात करूं, होता ये है कि हम लोग क्योंकि ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे थे, जैसे आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, तो ऐसे खोजना नहीं पड़ा। हमें मालूम था क्योंकि हम खुद भी इसी पहचान से थे, तो बहुत जान पहचान भी हो गई। और फिर जब गुजरात की अगर मैं बात करूं तो जब स्टिकर्स छपे और जब वो आर्टिकल छपा और उसके बाद एक्चुअली एक फिल्म और आई थी गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड के बारे में जब लोगों ने इस तरह से प्रोटेस्ट करा तो हम लोगों ने तब ये कहा था कि फिल्म जैसी भी हो वो फिल्म को बैन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, सबको देखने का। तो जब इस तरह से बातें करते थे तो अखबार में जब छपता था तो बहुत लोग खुद मिलने भी आते थे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई कपल जैसे इलोप कर रहा है, और ऐसा नहीं कि वर्किंग क्लास लोगों में इलोपमेंट नहीं होती थी। तब जब जैसे वो सबको मालूम है, गुजरात में सोनू रेखा ने मतलब एक बार आई थिंक पूरे क्वेयर कम्युनिटी को हिला दिया था। जब वो भागे तब हम लोग सब दिल पे हाथ रख के कहते थे कि इंशाअल्लाह वो कभी पकड़ में ना आए। और जब वो पकड़ में आए तो हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ। पर इस सारे हादसे से बहुत लोग हमसे जुड़े, क्योंकि हम लोग ओपनली फील्ड में जाके प्रेस में इंटरव्यू दे रहे थे, तो फिर लोग भी बहुत आए। दूसरा, जब भी कोई खबर छपती थी, जैसे कोई भाग रहा है या मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, तो हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाते थे। तो दोनों तरफ से चलता था कि हम मिले सब लोगों से, सब क्लास से, और सब क्लास से लोग हमें भी कांटेक्ट करते थे। क्योंकि ये जो एकांत में जो रहना है और ये घुटन है, उसकी बहुत जरूरत होती है, सबकी बहुत जरूरत होती है कि मेरा जैसा कोई हमें मिले। I hope I've been able to answer. Yes, ma'am. Thank you. Charles want to ask a question. Charles, please go ahead. Hi, Charles. Hi. बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। और माया, हम तो कहानियां सुनने के लिए ही बैठे, तो आप लोग प्लीज बताइए। मुझे ना एक्चुअली आप दोनों से ये जानना है, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से गुजरात में जो काम कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे गांवों में भी गए हैं। और जो आपने पहले भी कहा कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं और रह रहे हैं, बहुत सारे ट्रांस लोग हैं, उनके पार्टनर्स हैं। तो मुझे लगता है जो हम पिछले कई सालों से नालसा और उसके बाद से जो ट्रांस राइट्स का मुद्दा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं पे जो आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है इन सब लोगों के साथ, आपको क्या लगता है कि मतलब एक सर्जरी और ये सब है, वो जो चीजें हैं जो हम कॉमनली बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोगों की आप जिंदगियां देख रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह की लड़ाई विल स्ट्रेंथन देयर वेयर दे आर लिविंग, जो उनको सशक्त करेगी जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे? आपको क्या लगता है कि वो हमें मतलब किस तरह से और आगे काम करना चाहिए ताकि जो लोग जहां रह रहे हैं वहां पे ही वो सशक्त ज्यादा बने? सही है। तो, पर जो हमें लगता है, इंदिरा अगर तुम कुछ कहना चाहो। मेरे ख्याल से जो भी कपल्स गांव में रह रहे हैं, रूरल विस्तार में रह रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेंस उन्होंने बनाई हुई है, उसको और बनी हुई है उनकी। अगर मैं 2-4 उदाहरण आपको दूं, तो अभी हाल ही में किसी ने
मकान बनाया ट्राइबल विस्तार में। तो एक ट्राइबल विस्तार में और रूरल विस्तार में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी चीजों की एक्सेप्टेंस है जिसको हम सोचते हैं कि शायद नहीं होगा। मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो उसने जब वो मकान बनाया तो उनमें एक मकान बनाते हैं तो उसको कुछ भूमि पूजन बोलते हैं, सॉरी। तो भूमि पूजन के लिए वो एक पति और पत्नी की तरह बैठे हुए थे और वी वर ऑल सरप्राइज कि चल कैसे रहा, और सारे लोग आ रहे थे, मिल रहे थे उसी तरह से जैसे एक कपल को मिलते हैं, उनसे बातें कर रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, खा रहे थे, जा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ अजीबा चीज है वहां की। हम एक्टिविस्टों के लिए थोड़ा लग रहा था कि इतना एक्सेप्टेंस है, वाकई है, पूछ रहे थे अपने आप को। लेकिन ये लड़ाई उन लोगों ने लड़ रही दी है, जैसे जमीन अख्तियार करना, मकान बनाना, नौकरी लेना, कार्ड भी छापना ना, कार्ड छापना। मैं अगर एक उदाहरण दूं तो एक सुरेंद्र नगर की बात है, उसने अपने पति का नाम लिखाया है अपने पति, यहाँ बहन और भाई लिखते हैं औरतों के लिए और भाइयों के लिए। अगर मैं कहूँ तो मुझे कहना पड़ेगा अपर्णा बहन या अजय भाई। तो उसने लिखा है कि दया बहन, हस्बैंड्स नेम इज दया बहन, और ये चल रहा है। तो ये काफी लड़ाइयां उन लोगों ने लड़ ली हैं। उनको इस तरह के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनको सपोर्ट की जरूरत होती है जब कोई जैसे कि जॉब में कभी जाहिर हो गए, सरकारी नौकरी है, वहां कोई क्वेश्चन कर दिया, उस तरह के चीजों में वो लोग इंक्लूड करना चाहते हैं। या प्रमोशन देने में अगर देखते हैं ये ट्रांस है उसको दबाना चाहते हैं, वहां हम अपनी आवाज उठाते हैं कि भाई किस आधार पर आपने इसको प्रमोशन नहीं दिया। लेकिन काफी लड़ाइयां लड़कर और वो जी रहे हैं वो जिंदगी, हम सिर्फ जाके उनके साथ शामिल हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी इस तरह की लड़ाई की जरूरत है या मदद की जरूरत है। हाँ, नालसा जजमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी जब हम लोगों ने बातचीत शुरू की तो उसको लेकर एक है कि अगर हम इस कदर अगर इस हद तक बाहर आएंगे तो हमें वक्त लगेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर हम जाहिर हो जाए या अपनी आइडेंटिटी को जाहिर कर ले तो क्या हमें नौकरी में हम औरतों के आधार पर हमें नौकरी मिली हो तो क्या मिलेगी, जॉब हमारी बरकरार रहेगी, हमारी नौकरी नहीं रहेगी, उस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन खुद की लड़ाई उन्होंने लड़ ली है काफी हद तक। नहीं, और एक दूसरा परिस्थिति जो खड़ी हो गई है नालसा जजमेंट, मतलब कैसे होता है, कानून कभी अच्छा भी होता है और दुविधाएं भी बहुत पैदा कर देता है। तो जैसे कि कुछ लोगों ने अपना SRS करवा के अपना ID कार्ड बना लिया है, अब आधार कार्ड आने से वो नंबर बड़ा फिक्स हो गया है। तो ये हमेशा खतरा रहता है अब कि मैंने अपना जेंडर खुद बदल लिया, अगर किसी दिन इस आधार कार्ड के बेसिस पे मुझे पकड़ लिया कि मैं फीमेल, दरअसल मैं फीमेल हूँ, तो मेरा क्या होगा। तो ये जो लीगल और इलीगल की जो लड़ाई अब पैदा हो गई है, ये भी, और इसका कोई जवाब नहीं मिलता है कि इसको कैसे सलटाया जाए। सरकार से बातचीत कर रहे हैं हम अभी, पर you know how it is with this kind of government, and COVID now is enough excuse to further postpone it. And the other problem I feel is livelihood, काफी एक इश्यू है। एजुकेशन में जब बच्चे पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं और फिर जो अपॉर्चुनिटी का बराबर नहीं मिलना, उससे जो हम हमारे क्वेयर कम्युनिटी के लोग जो पीछे रह जाते हैं उसमें है। और कहीं एक्सेप्टेंस भी है, पर मगर परिवार से बहुत लड़ाई झगड़ा भी है बहुत लोगों को। पर आई डोंट नो आप लोगों का क्या अनुभव है, पर आई hate to say trans people will kill me, but you know I find a level of acceptance for trans people. I think because I don't know, maybe trans people bring their partners in. But then the partners of trans people have a very tough time with their families. बैंगलोर के लोग भी ये कहते थे, बैंगलोर के बहुत सारे कपल्स में जो the woman partner would always say कि इसको फाइनली फैमिली एक्सेप्ट करती है, शुरू में नहीं करती है, लेकिन as time goes by फैमिली एक्सेप्ट करती है, लेकिन हमारे को कभी नहीं करती। That is the और ये बड़ा और प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी इन चीजों की बात नहीं करते, पर जब रिश्तों में दिक्कत आती है
तो मुझे लगता है वो महिला वो फिर भी ऐसी वाली स्थिति में है कि कहाँ जाऊं मैं, और फेमिनाइन होने की वजह से बहुत बार नौकरी भी उस तरह से नहीं करते हैं। हालांकि ये पूरा सच भी नहीं होगा, क्योंकि वर्किंग क्लास काम भी करते हैं, तो मतलब हर सेंटेंस के पीछे एक क्वालिफाई लगाना पड़ता है कि दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीथिंग, बट ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कहाँ जाए। और वो जब हम बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस का या और मुद्दे, फिर इन पार्टनरशिप के लिए क्या किस तरह के कानून और नियम होने चाहिए जिसमें हम सबको जस्टिस मिले। Interesting. Thank you. थैंक यू। Yeah. और कोई Thank you. सवाल? मुझे याद आया शालिनी, हम लोगों ने यहाँ पे भी एक वर्कशॉप करी थी गुजरात में, रिमेम्बर? हाँ हाँ बिल्कुल, 2004 में। हाँ, और क्योंकि तब हम एक्चुअली वी वर आल्सो गेटिंग फेमिलियर विद ट्रांस पीपल, या दैट वाज द टाइम, सो वो भी अच्छा था। was the time that Famila had just died. So actually, नहीं, she was there. no, Kajol was there. हाँ हाँ, right. वाओ। It feels really nice to hear your stories. Yeah. Yeah. Any questions, comments? I wanted to ask you about the support or the challenges that you faced, both support and challenges that you faced from the LGBTIQ movement in Gujarat with regard to your organization and organizing. Like Gindira mentioned about Lakshya Trust to a certain extent, but वो support कैसा था, किस तरह का support मिला, challenges किस तरह के हैं, और एक LBT group चलाना इतना आसान नहीं होता है। एक बहुत बड़ा HIV का एक एजेंडा है और दूसरा एक LBT और ऑर्गेनाइजिंग है जो प्लेजर, डिजायर, राइट्स के बारे में बात करती है। तो उसमें क्या लड़ाई झगड़ा, सपोर्ट वो हुआ, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। Basically, I just want to understand the question ki what are the challenges we face as a queer group in Gujarat, right? Challenges and also support क्या मिला? हाँ, तो एक तो जब भी प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब कोई कपल आता है for shelter for various reasons, तो we have been attacked in all the offices that we have worked. तो ये बड़ी एक दिक्कत होती है कि आप अगर मतलब बहुत डिलेमा रिडन इसलिए होता है कि you are going to the police, then you are revealing the identity, and और मीडिया और पुलिस का ऐसा जुड़ाव है कि जैसे अभी अटैक चल ही रहता है कि मीडिया एकदम पहुंच जाता है। तो this insecurity is I think we have over a period of time learned to deal with that insecurity, क्योंकि ये लोग पत्थर भी फेंक देते हैं और they just bash into your room, ऊपर चढ़ जाएंगे देखने के लिए कि कहाँ रखा है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और अभी भी we have to be very careful how we plan a getaway, or when the couple comes how do we shelter। ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम रहा है। लक्ष्य के साथ हमारा बहुत अच्छा चलता है, बीच बीच में गड़बड़ भी हो जाता है, फिर अच्छा भी हो जाता है। So it's I think it's right now both the groups have matured in a way that we accept our differences and we work within those differences, but we have felt supported। जैसे जब हम स्टिकर्स चिपकाते थे तो बहुत मदद रही कि हम लोग, क्योंकि HIV एड्स का ये फायदा था कि सरकार से एक लेजिटिमेसी मिल जाती थी, जो औरत होने के नाते मतलब
having a women's body and sexual desire is always a problem. So that used to be a great help. And even now, I think a lot of the times we अब जैसे पूरा advocating with Gujarat government for implementation of Nalsa judgment and other things, we have on and off networked, and it has benefited us. So और भी जब भी हम लोगों ने ऐसे मुद्दों को न्यूज़पेपर में अगर जाहिर भी हुआ है तो काफी दूसरे लोग सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि आप मेरे घर को यूज कर सकते हैं, आपको एजुकेशन में डालना है तो वो हेल्प करेंगे। तो जो छुपे हुए भी हैं लेकिन छुपी तरह से मेहनत सपोर्ट करना चाहते हैं, वैसे लोगों की संख्या भी काफी अच्छी है बड़ौदा और अहमदाबाद राजकोट में भी। और जो सबसे बड़ी तकलीफ आती है कि 3 महीने या 4 महीने तक अगर वो आते हैं, उनको सपोर्ट करने के बाद फिर उनको खड़ा कैसे किया जाए लाइफ में, क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स उनके माँ बाप ले लिए होते हैं, देते नहीं है, या जो लड़की है वो वापस जाके लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जान का जोखिम है या शादी करा देंगे उसका प्रॉब्लम है। इस तरह के चैलेंजेस होते हैं जिसको हमको लीगली नोटिस भेज कर कि आप उसके डॉक्यूमेंट को नहीं रख सकते हैं, देना हो तो लंबाई मतलब वो प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है और कभी कभी बहुत टायरिंग भी हो जाती है कि 6 महीने 8 महीने तक आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो खड़ा होने के लिए, और बहुत छोटी छोटी चीजों को हासिल करने के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, लोग आते हैं सपोर्ट करने के लिए। पत्रकार लोग भी काफी तरह से मदद करना चाहते हैं, या फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ, स्टूडेंट्स हुआ, और अभी तो स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही खुले हैं, मुझे लगता है यंगस्टर्स काफी एक्सेप्टेंस है उनके बीच और वो जानना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। जो भी प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स आते हैं उनकी मैं देखता हूँ कि एक समझ है और उस समझ को से वो और भी अपने जानकारियों को बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि समाज काफी अच्छी तरह से खुल भी रहा है। हालांकि टेक्स्ट बुक्स नहीं खुल रही स्टूडेंट्स पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आ रहे हैं, बट टेक्स्ट बुक्स तो देखने वाली है हमारे स्टेट की। तो सब जगह की वही है एजुकेशन सिस्टम। दो सवाल है, मालविका, you want to ask it aloud? Ask it yourself. You'll say hello also to Maya and Indira. Yeah. Hi. Hello. Am I clear? Hi, Maya and Indira. It's wonderful to see you and listen your wonderful stories and your, all the work you people are doing. This is really amazing. I have a little, here actually I'm thinking because, what we are also experiencing that during this pandemic, COVID-19 pandemic, many of our, community persons, they are losing their job. They already lost their job. Those who are entrepreneurs, their business just stopped. So they are right now, most of them are penniless. So how you people are intervening there? Your organization intervenes. So this is my question. Yeah. See, अभी हम लोगों ने क्या करा हुआ है कि other than Vikalp, Gujaratis are very wise, money wise. So we have a small amount of money which every month we pay, and then as and when needed, people avail of that money. I will also ask people who are happy to contribute, please contribute. But that is how temporarily, but I know it is going to be a very hard struggle because people, जैसे अब हमारे जो लोग हैं, एक जैसे ऑटो ड्राइवर है, उसने अपना ऑटो का लोन लिया हुआ है और ऑटोज अभी चल नहीं पा रहे हैं, अहमदाबाद में चल रहे हैं अब तो, पर फिर भी कम है। तो हाउ डू वी कॉम्पेंसेट टू पे फॉर द लोन? सो द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, जहाँ किटी है फॉर एग्जाम्पल, उसको अभी लोन के लिए तो पैसा दे पा रहे हैं कि वो किसी तरह से अपना दरगुजर कर ले। रेंट मनी, सो वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ मनी पुट अवे, और जैसे हम लोगों ने ऑल्सो भी सपोर्टेड देम इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, क्योंकि
हार्मोन्स इंजेक्शन ये सब की जरूरत होती है, डॉक्टर्स की है. तो वी हैव फ्रेंडली डॉक्टर्स जिनसे हम लोग बातचीत करके और दवाइयाँ और ले सकते हैं. और अभी काफी कुछ उधार पे चल रहा है और लो इंटरेस्ट रेट. बट हाँ, ये दिक्कत है. इट इज अ पेनफुल स्ट्रगल एंड आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. दैट इज वेरी हार्ड टू टेल. अगर ग्रुप की बात करें तो अगर अभी देखें तो उन लोगों को अप्रैल में मिला था ना, अप्रैल में 1 वीक का काट कर मई में बिल्कुल नहीं सैलरी मिली है, और जून में जब से वो जुड़े हैं तब से उनको सैलरी मिलेगी. इस तरह की व्यवस्था है. तो कुछ सेविंग पर, कुछ सबरंग हमारे ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है ट्रांसलो की, जहाँ पे वो कुछ छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करते हैं, उससे चल रहा है. और कुछ सैलरीज भी आई हैं जो अभी रेगुलर जॉब हो रहा है, और अभी जॉब बची हुई है. लेकिन इस बार तो बची हुई है, लेकिन अगर दूसरा कुछ ऐसा आया उसको हम संभाल पाएंगे या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है. क्योंकि एक तो झेल लिया किसी तरह इकट्ठे, लेकिन शायद दूसरा बहुत तकलीफ में डाले हम सबको. Thanks a lot. Thanks a lot. किसी का सवाल है, do you think that trans women advocacy should be included while talking about trans men and feminist advocacy? Come again, Rituparna. ये chats में है. Do you think that trans woman advocacy should be included while talking about trans men and feminist advocacy? ईशी आर्ची बोल के किसी का सवाल है. Of course, हम जरूर include जिस तरह से trans men को include. It has to be a very inclusive struggle. But since we are working with trans men, we happen to talk of trans men. But of course, trans feminine people have to be included, and it's good for us. I remember the Calcutta conference. We have come a long way since then to include them with us. So it's perhaps our language perhaps should just be trans people, but also there was a time when trans men were completely out of it. So it is in a sense a way, when we talk of trans men, it is a way of inclusion too. Okay. Hope your answer is, hope you got your answer, Ishi. Any more questions? Yes, ma'am. Can I ask? Yes, of course. Hello, ma'am. I'm Shalu, and I'm from Delhi University. So, मैंने आपकी बुक पढ़ी थी एक रिसर्च पर्पस के लिए, क्योंकि मैं उस फील्ड में रिसर्च करना चाहती थी. बट मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा वो स्टोरीज ढूंढने के लिए अबाउट इंडियन क्वेयर वुमेन जिनके क्लास, इंडियन क्वेयर वुमेन जिनका क्लास लाइक लोग बोलते हैं कि बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग ही क्वेयर हो सकते हैं. तो मुझे लगा कि हम लोग के एकेडमिक्स में वो स्टोरीज कहीं ना कहीं कमी है उन स्टोरीज की. तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह की स्टोरीज लाने के लिए क्या चेंज होने चाहिए? मुझे लगता है कि ये तो बहुत जरूरी हिस्सा इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ही होना चाहिए कि हाउ कैन वी टॉक ऑफ इंक्लूसिव education system if it doesn't even have the text which is inclusive. I think the struggle begins there, and perhaps we have to find allies who can talk about it, and the community themselves, that we are everywhere. Hello. Yeah. We are off air again. No, you are there. Achha. Yeah. I hope I've been able to answer. Ishi. Ishi nahi, Shalu. Achha. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any more comments?
Okay, there are no comments, Maya. Any more Thank you. last thoughts? Okay, thank you. So we are planning to invite few more people in the next month. We'll keep Oh, you nice. updated, and this is for everyone. We'll keep you updated. Do check our Instagram, Facebook page, then you'll get to know who is being invited for the next month. So thank you to everyone. Yeah. Mhm. Thank you everyone for joining in and making this series a success. Um, bye, Maya and Indira. Thank you so Bye, much. but Nazaria, all. thank you very much. Thank I you. think it's an excellent series. It needs to be documented. And I think you people have already begun. So thanks a ton. Yes, we will share the document. We have a documenter with us. We'll share the document once it is done. Wow. So good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye, Sean. Bye bye, Jen.